Hello everyone, today I am going to explain you binomial theorem and Pascal triangles. Before this, I'll start with very simple thing. Look at this thing. In earlier classes we did this part, x plus a whole raised to power 0. What is the value of this? 1. If we have x plus a whole raised to power 1, what is this? X plus a. If we have x plus a whole raised to power 2, what is this? X square plus 2ax and then plus a square. Now look at this thing. Here we have the only one term. Here we have the two terms. What is the coefficient of first term? 1. What is the coefficient of second term? 1. Here what is the coefficient of first term? 1. Coefficient of second term? 2. Coefficient of this term? 1. So binomial expansion is used to find out whatever the index is given. This 0 1 2 is known as the index of this expansion. अगर इंडेक्स हमारे पास 3 तक है तो हम इजीली कर लेते हैं because we know the relations, but more than 3, then this binomial theorem is very important concept to find out the expansion. And what is the use of Pascal triangle? Pascal triangle is very important to find out the coefficients of these terms in order without calculating. So Pascal triangle is very important concept. अगर आपको इन कोफिशिएंट्स को विदाउट कैलकुलेशंस के निकालना है तो आप पास्कल ट्रायंगल्स के सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा. नाउ दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द Pascal triangle, how we will make this expansion in case of Pascal triangle for the coefficients of the terms. Now look at this thing. Here I'll write down the index and here I'll write down the coefficients. And how I'll make the Pascal triangles? Now look at this thing. If index is 0, understood, 1. If index is 1, make it triangle here. It means this portion will remain blank because here we have to use the triangular concept. यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1. Because you know very well, अभी जब हमने देखा था अगर पार 1 थी तो दोनों जो हमारे पास टर्म थी उनका कोएफिशिएंट 1 ही आया था. Now look at this thing. If 2 in this first start with triangle 1. अब देखिए यहां पर ये ट्राइंगल का सम कर दीजिए. जो जो इसके कॉर्नर पे डिजिट्स आ रही हैं उनका सम कर कर उस टर्म को लिख दीजिए. 1 + 1. देखिए ये ट्राइंगल बनेगा. दिस दैट इज व्हाई हियर यू हैव टू पुट 2 एंड हियर अगेन blank एंड दिस इज 1. अब देखिए इन केस ऑफ 3 स्टार्ट यहां ब्लैंक से करें. 1. व्हाट इज दिस? 3. This is blank. It means 3. And what is this? Triangle 1. Blank means not this thing कि हमें एक एक टर्म को छोड़ते जाना है. ये केवल एक ट्राइंगुलर बेस पे बनाने का कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू द पास्कल ट्राइंगल. ये क्लियर है कि अगर इंडेक्स 3 हुआ तो 4 टर्म्स आएंगी और पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 3 होगा, थर्ड का 3 होगा और फोर्थ का 1 होगा. If the index is 4, you take this triangle, this 1, this is 1 + 3 4, this is 3 + 3 6, this is 3 + 1 4, this is triangle and this is 1. In this way you can make the coefficients for the any index. आप 7 तक इसे बनाइए और मन में कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए. One very important result I am telling you. Whatever the coefficient of first term, that will also the last term. जो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट आएगा वही सेकंड लास्ट टर्म का आएगा. अब देखिए और जो मिडिल की टर्म बची यहां वहां क्या आ जाएगा? 6 इन केस ऑफ इंडेक्स इज 4. आप जब इंडेक्स 5 का बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा. 6 का बनाएंगे देन इट इज ऑल्सो चेंज. तो उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा. But this is very important concept. Now, what is this? Binomial theorem. Binomial theorem, only one rule is there and on this rule we can find out all the things. What is the rule? X plus a whole raised to power n. This is, what is this n? N is the positive integral. It means जो हम binomial theorem 11th standard में पढ़ेंगे तो इसका जो इंडेक्स आएगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल. इट मींस वो फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा.
तो देखिए क्या हुआ, NC0 रूल x रेज टू पावर n a0 प्लस NC1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a1 प्लस NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NC0 n x रेज टू पावर 0 a रेज टू पावर n। अब देखिए ये NC0 अगर हम इस बेस पे कैलकुलेट करें तो हमने जो आपको अर्लियर रूल पढ़ाया था पिछले चैप्टर में NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट वी विल अवॉइड दिस थिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल ट्राइंगल। वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट्स। ओनली दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए एक चीज जो हम बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पूरे उसमें कर क्या रहा हूं, अगर ये इंडेक्स n है, फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो मैं हाईएस्ट n ही लूंगा और सेकंड टर्म 0 से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट में x की पावर को एक एक लेस करूंगा और a की पावर को एक एक बढ़ाता जाऊंगा। इन द सेम वे जब लास्ट में है तो x की पावर 0 हो गई और सेकंड टर्म की जो पावर होगी वो क्या हो गई, n। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इन सब की जो पार्ट्स का, दोनों वेरिएबल्स की जो पार्ट्स का सम है वो हमेशा ये इंडेक्स के इक्वल आता है हर टर्म में। देखिए यहां n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहां 4 होता तो सबका सम 4 आता। नाउ लेट्स टेक विद द वन एग्जांपल, देन ऑल द थिंग्स वी विल यूज इफ वी हैव x प्लस y a होल रेज टू पावर 4। तो देखिए 4 को हम कैसे सिंपली बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। 4c0 x रेज टू पावर 4 a0, 4c1 x रेज टू पावर एक लेस कर देंगे 3 a1 प्लस 4c2 x रेज टू पावर 2 a2 प्लस 4c3 x रेज टू पावर x रेज टू पावर 1 a3 प्लस 4c4 x रेज टू पावर 0 and what is this, a4। so this is the way। अब देखिए हम डायरेक्टली इस बाइनोमियल जो हमने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया था इससे आप डायरेक्ट इन टर्म्स का कोएफिशिएंट्स रख सकते हैं। 4c0 1 ही आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज x4 ओनली। देखिए सेकंड 4 था तो यहां 4 लिख दीजिएगा, x क्यूब है। व्हाट इज दिस, 4c2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस 6 आएगी, x स्क्वायर a स्क्वायर, 4c3 4 आएगा, it means 4x a cube and this is 1 only, it means but this become a4। so this is the answer। so ये तो हमने 4 तक बताया है, ये 6 7 किसी भी टर्म्स तक आप ले जा सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल वे से 4c2 को आप जो हमने पिछले चैप्टर में रूल बताया था अगर हम उससे भी कैलकुलेट करें NCR से, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 4 minus 2 2, what this become 4 3 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 को आपने ब्रेक किया, 2 2 जा 4 एंड व्हाट इज दिस 6। और देखिए ये भी कितना आया 6, बट इट विल टेक मच टाइम। सो अगर आप पास्कल ट्रायंगल का सीक्वेंस बना लेंगे, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को जो हमने बताया है इसे आप सीक्वेंस वाइज लेते रहेंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, इजिली यू कैन कैलकुलेट एनी पार्ट। बट आई विल सजेस्ट कि आप इस पास्कल ट्रायंगल को 7 तक बनाइएगा और 7 तक कोएफिशिएंट को बाय हार्ट लर्न करिएगा। और देखिए ऑर्डर में करिएगा, जैसे अगर मुझे इंडेक्स 4 है तो मेरे माइंड में ये सेट होना चाहिए 1 4 6 4 1। सो इन दिस वे इफ यू विल डू द प्रैक्टिस और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे देन इन फर्दर पार्ट देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए इंडेक्स 4 था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 5। इट मींस एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो इंडेक्स से एक ज्यादा आती है। इट मींस अगर इस एक्सपेंशन में x प्लस ए रेज टू पावर n में मैं आपसे कहूं कि एक्सपेंशन के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, देन यू विल से दिस विल बी n प्लस 1। और देखिए फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसकी पावर हाईएस्ट से 0 हो जाती है n तक जाते जाते, और सेकेंड टर्म की 0 से चलते चलते n तक जाते जाते क्या हो जाती है हाईएस्ट। So please revise this concept again and again and don't forget to give the answer of this question in the comment box, and don't forget to like, subscribe and share this channel
Thanks and God bless you.